Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are doing well. You all are healthy, fit and your studies are going well. Children, you know that schools are still closed due to COVID-19 and we have to continue with our online classes. We have to continue with our video classes because we have no other option. So do attend your online classes regularly, watch videos, clear your doubts if you have any, and complete your exercise. Children, you know that I have started chapter 1 of your English textbook. वर्ड्सवर्थ इंग्लिश बुक जो है आपकी मेन कोर्स बुक, उसका चैप्टर 1 मैंने स्टार्ट किया है and I have completed 4 paragraphs of that chapter. In today's video, I will be starting 5th paragraph. I will be explaining you 5th paragraph. I will be reading, I will be explaining the difficult words as well as the sentences. I'll read each and every word for you. I will read sentence for you. You can repeat after me. You can practice along with me. And meaning of all the new words I will be clearing while explaining the paragraph. Children, you know the name of the chapter, My Mother and I. You know that in this chapter there is a girl named Pihu and she is telling us about her mother and herself. That's why it is written my and I. Whenever my or I is written, it means that the speaker is speaking himself. The speaker is telling himself. It is the first person. जो बोल रहा है स्टोरी में वो खुद से बता रहा है. That is why it is written my and I. Okay. So in this chapter there is a girl named Pihu. She is 7 years old and she tells us that she lives in a big city and name of that city is Mumbai. Mumbai is a city in state of Maharashtra. So she lives there along with her mother and younger sister. Younger means the person who is the person whose age is less than yours. So she lives with her mother and with her younger sister. Then she shows a picture also of her mother and her younger sister. Her younger sister is sitting with her favorite doll, holding her favorite doll. Then in the second paragraph she tells us about her mother. Name of her mother is Pallavi. Her mother is 36 years old. Her mother has short black hair and she has brown eyes. Even Pihu has brown eyes. She has brown eyes as her mother has. Then in the third paragraph, she tells again about her mother only, that her mother is a very hard working lady. She works very hard. She wakes up early in the morning because she has to cook for them, for the family, and she also has to get ready for work. Her mother is a working lady. So she wakes up early in the morning to prepare food and also to get ready for work. And sometimes she often drops Pihu at her school. So she has to wake up. Then there is a picture. She tells us that in that picture her mother is making juice for all of them. Then in the fourth paragraph she tells about the work that her mother do. Her mother is a teacher. Her mother is a teacher, but she does not teaches children. She teaches grown-ups, the adults who want to become teacher. She teaches the people who want to become teacher. And then she shows a picture of her workplace where her mother is teaching some grown-up person, some adult person who want to become teacher. तो इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना मैंने आपको explain कर दिया है. Today I will starting the 5th paragraph. So if you have book, you can open your book where chapter number 1. And if you are not having book, if you are having PDF, you can open that. Or if you do not have even PDF, then also you need not have to worry because I will be writing the paragraph on the board. मैं बोर्ड पर उस पैराग्राफ को लिख देती हूँ. ठीक है. So let's start.
ट्राई टू परचेज बुक एज सून एज पॉसिबल। कोशिश कीजिए कि आप बुक खरीद लें, जितना जल्दी आप खरीद लेंगे उतना बेटर रहेगा। ओके, this is the fifth paragraph which I'm going to write. MUMMYGETS gets, BACK back, HOME home, AT at, FOUR for, IN THE AFTERNOON afternoon, she PICKS picks, UP up, MY my, SISTER sister, FROM from, HER her, PLAY play, SCHOOL school, ON on, the THE the, WAY way, BACK back, SOMETIMES sometimes, IHELP help, HER her, COOK cook, DINNER dinner, that THAT that, is, ME me, SHELLING shelling, peas, PEAS for, HER her, in this picture, in this PICTURE. So this is the fifth paragraph. ये है आपकी बुक चैप्टर 1 का फिफ्थ पैराग्राफ। नाउ लेट मी रीड दिस फॉर यू। ये तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको पढ़ूंगी। यू कैन रिपीट वर्ड्स आफ्टर मी। आप मेरे पीछे पीछे आप इसे रिपीट कर सकते हैं। ओके, विद स्पेलिंग आई विल रीड, डोंट वरी। MUMMY मम्मी, GETS gets, mummy gets, BACK back, HOME home, AT at, FOUR for, IN in, THE the, AFTERNOON afternoon, SHE she, PICKS picks, UP up, MY my, SISTER sister, FROM from, HER her, PLAY play, SCHOOL school, ON on, THE the, WAY way, BACK back। चलिए पहले इतना हम समझ लेते हैं। मम्मी गेट्स बैक होम एट 4 in the afternoon। मम्मी गेट्स बैक 4 in the afternoon। Now what does this mean? मम्मी गेट्स बैक। गेट्स बैक का मतलब होता है कहीं से वापस लौटना, टू कम बैक। गेट्स बैक मीन्स टू कम बैक।
मम्मी गेट्स बैक, मम्मी जो है वो वापस आती हैं, शी गेट्स बैक होम एट 4. एट 4 मतलब what is the meaning of at 4? Here at 4 means at 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock in the afternoon. Mummy gets back home at 4 in the afternoon. Here this 4 means 4 o'clock in the afternoon. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, then 4 o'clock आता है, then 4 o'clock in the afternoon. मम्मी जहाँ भी वर्क करने जाती है, wherever she goes for work, she comes back from there at 4 o'clock in the afternoon. Okay, this is AFTERNONOON. Generally the people who work, they have their working hours. जो भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, they have working hours. Some offices have 9 to 5 work, some have 10 to 4. In schools also it is 8 to 3 or 8 to 4. So every institution have their working hours, and her mother also has some working hours. So when she reaches home at 4. She reaches home at 4 o'clock in the afternoon. Then SHE, she picks up my sister from her play school on the way back. अब जब वो आ रही होती है, ऑन द वे बैक, आते समय, ऑन द वे मतलब रास्ते में, वे मतलब होता है रास्ते में, तो ऑन द वे बैक वापस आने के रास्ते में मम्मी और क्या करती हैं, शी पिक्स अप माई सिस्टर. अब पिक का मतलब ऐसे तो होता है उठाना, पर सिस्टर को उठाना नहीं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सिस्टर को भी लेते हुए आती है साथ में, जो उसकी यंगर सिस्टर है उनको भी लेते हुए आती है. यंगर सिस्टर कहाँ जाती है, शी गोज़ टू प्ले स्कूल. यंगर सिस्टर जो छोटी बहन है, पीहूज यंगर सिस्टर, शी गोज़ टू प्ले स्कूल. जनरली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दे गो टू प्ले स्कूल. प्ले स्कूल क्या होता है, अब प्ले लिखा है साथ में स्कूल भी लिखा है, मतलब वहाँ जाके सिर्फ खेलते हैं, खेल खेल में सीखते हैं. दे नॉट ओनली प्ले बट दे लर्न ऑल्सो वाइल प्लेइंग. प्ले स्कूल में बच्चे जब जाते हैं तो वो फॉर्मल उनका एजुकेशन नहीं होता है, प्रॉपर स्कूल की तरह वो उनके पीरियड्स नहीं होते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड इंग्लिश पढ़ना है, देन हिंदी, देन मैथ्स, देन EVS. नो, दे डोंट हैव फॉर्मल classes. They play with toys, they learn with toys. वहाँ पर जो वो सीखते हैं प्ले स्कूल में, मतलब खेल खेल में सीखते हैं. एंड वेरी स्मॉल किड्स, टाइनी टॉट्स गो टू प्ले स्कूल. आप भी गए होंगे जब आप बहुत छोटे होंगे, तो अभी भी आप छोटे हैं, यू आर स्टिल किड, बट जब इससे भी आप छोटे होंगे तो यू मस्ट हैव गॉन टू प्ले स्कूल एंड यू मस्ट बी नोइंग व्हाट यू डू इन द प्ले स्कूल, व्हाट यू हैव डन इन द प्ले स्कूल. यू play and learn. There are many toys, many activities are held in play schools, so that the small kids are engaged in those activities. They learn through activities, they learn while playing. तो पीहू की जो बहन है वो बहुत छोटी है, she does not go to formal school but she goes to play school. तो मम्मी जब वर्क पे जाती है, काम करने पे जाती है, अपने ऑफिस जाती हैं, तो हर यंगर सिस्टर गोज़ टू प्ले स्कूल. तो वापस जब आती है, ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आती हैं तो वो अपने साथ वो पीहू की जो छोटी बहन है उसको प्ले स्कूल से लेते हुए आती हैं. ठीक है, वापसी में जब वो घर वापस आती हैं तो शी टेक्स, पिक्स मतलब वो स्कूल से ले लेना, शी टेक्स हर यंगर सिस्टर फ्रॉम हर प्ले स्कूल. यहाँ पे पिक्स अप का मतलब है शी टेक्स, शी ब्रिंग्स हर यंगर सिस्टर अलॉन्ग विद हर, अपने साथ लेकर आती हैं. ओके, आपको पिक्स का मतलब समझ में आ गया, मतलब टू टेक हर अलॉन्ग विद हर. मदर टेक्स हर यंगर सिस्टर अलॉन्ग विद हर व्हाइल शी कम्स बैक होम. जब वो वापस आती हैं तो ऑन हर वे, रास्ते में ही उसको लेते हुए आती हैं. रास्ते में लेते हुए आती हैं का मतलब ये भी हुआ कि ऐसा नहीं कि वो घर आती हैं फिर घर से फिर वापस उसको लेने के लिए जाती हैं, कि एक ऑफिस से घर आ गए, अब फिर वापस जा रहे हैं घर में आने के बाद
थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर जा रहे हैं प्ले स्कूल सिस्टर को लेने के लिए। नो, वो वापस नहीं जाती हैं, बल्कि रास्ते में ही उसको लेते हुए ही आती हैं। Sometimes I help her cook dinner. Now what Pihu is saying that mummy often gets tired. सुबह भी काम करती हैं, then she goes to her work, there she works, and then when she comes back she feels she often feel tired. So Pihu says that sometimes I help her cook in dinner. अब रात को तो खाना बनेगा ना, तो रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। रात को जो हम खाना खाते हैं दैट इज कॉल्ड डिनर। द फूड दैट वी ईट एट नाइट इज कॉल्ड डिनर। सो समटाइम्स आई हेल्प हर कुक डिनर। हियर आई कौन है? पीहू। पीहू टेल्स अस दैट शी इज सेइंग दैट शी हेल्प्स हर मदर इन कुकिंग डिनर। वो अपनी मम्मी की मदद करती है खाना बनाने में। अब आप सोच रहे होगे कि पीहू इज 7 years old, हाउ कैन शी हेल्प अ मदर इन कुकिंग? तो कुकिंग में हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर खाना बनाना, ओके? कुकिंग में हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपरली कुक करना। हेल्पिंग इन कुकिंग का मतलब होता है कुकिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं उनमें हेल्प करना। द वर्क दैट इज रिलेटेड टू cooking, like bringing some vessel, washing the vegetables, if mommy asks for something, giving spoon, arranging table, arranging plates on the table, all these things comes under helping. मम्मी ने कुछ मांगा वो दे देना, या आप मम्मी आपकी अगर सब्जी काट रही है तो आप उनको हेल्प कर रहे हो सब। जैसे कि यहाँ पर पीहू इज सेइंग दैट इज मी शेलिंग पीस फॉर हर इन दिस पिक्चर। वो एक पिक्चर भी है, आप देखेंगे बुक में, वहाँ पर जो पीहू है शी इज शेलिंग पीस। अब शेलिंग पीस का मतलब क्या होता है? शेलिंग करने का मतलब होता है छिलके में से किसी चीज़ को निकालना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छिलके के अंदर होती हैं, एंड व्हेन यू ओपन इट एंड यू टेक आउट इट, दैट इज कॉल्ड शेलिंग। जैसे मटर के पॉड्स होते हैं, पी पॉड्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, ऐसे मटर होता है ना, और इसके अंदर मटर होते हैं ना। तो उसको जब ओपन अप करते हैं, when we open up, तो उसके अंदर मटर होते हैं। तो ये जो मटर के जो छिलके होते हैं उसके अंदर मटर के दाने होते हैं, है ना। तो उसको पी पॉड्स बोलते हैं। जो मटर होता है उसको पी पॉड्स बोलते हैं। जब उसको छीलते हैं दैट इज कॉल्ड शेलिंग, और उसके अंदर से मटर निकालना, छील कर मटर निकालने को बोलते हैं शेलिंग, ओके। तो शी हेल्प्स हर मदर इन शेलिंग पीस। मटर को छीलने में वो हेल्प करती हैं। तो वो आप भी कर सकते हो, है ना, मम्मी की मटर छीलने में हेल्प कर सकते हो। और कौन सा काम है जो आप अपनी मम्मी के साथ किचन में कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू इफ़ मम्मी आस्क फॉर सम स्पाइस, कि देखो वहाँ पे वो स्पाइस रखा है, ला के दे दो, मुझे वो नमक जरा पकड़ा दो, या मुझे ये पकड़ा दो, तो दैट यू कैन डू। या वो वाली प्लेट दे दो, वो वाली स्पून दे दो, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ये सब कर सकते हैं, है ना। और जो जिसमें नाइफ यूज़ होता है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप इससे क्या होता है, यू मे हर्ट योर सेल्फ। सो you can also help your mother in some of the work, not only in cooking but बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो, लाइक कीपिंग योर थिंग्स ऑन योर प्लेस, दैट इज़ द बिगेस्ट हेल्प। आप अपनी चीज़ें सही जगह पे रखोगे, दैट इज़ द बिगेस्ट हेल्प टू योर मदर। मम्मी को सारा रूम अरेंज करना पड़ता है, तो जब आप अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखोगे तो मम्मी का काम कम हो जाएगा, है ना। तो कीप योर थिंग्स एट योर प्रॉपर प्लेस, दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प टू योर मदर। आप अपने कपड़े यहाँ वहाँ मत फेंक कर रखो, उसको प्रॉपरली अरेंज करके रख दो, अपने शूज़, अपने स्लीपर्स को प्रॉपरली रखो। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू एंड दिस विल
मेक अ ग्रेट डिफरेंस. दिस विल हेल्प योर मदर अ लॉट. आपकी मम्मी के काम में बहुत हेल्प हो जाएगी. अभी जैसे वाटर बॉटल में पानी भरना होता है, ये सब काम आप कर सकते हो. फ्रिज में पानी अगर भर के रखना है या फ्रिज से कोई चीज़ निकाल के मम्मा को देनी है, दैट यू कैन डू, है ना. मम्मी कैसे कहती है ना, फ्रिज में से ये चीज़ मुझे दे दो, वो ये दे दो, वो दे दो. तो दैट इन दैट वे यू कैन हेल्प योर मदर. तो इस तरह से चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर मदर in various way, not only in cooking but in various way children can help their mother. Here Piyu is helping her mother in shelling peas. वो कभी कभी जो जैसे कि वो फोटो में दिखा रहे हैं, पिक्चर में वो शो कर रही है कि देखो वो पिक्चर जो है उसमें मैं मटर छील रही हूँ. तो वो मम्मी की कभी कभी हेल्प करती है, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स. लिखा है ना, हमेशा तो नहीं करती है. समटाइम्स शी हेल्प हर मदर कुक डिनर. मम्मी को डिनर कुक करने में हेल्प करती है. एंड देन शी इज शोइंग अस पिक्चर इन विच शी इज शेलिंग पीस. अब देखिए मैंने कहती हूँ शॉ 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 बोला, इसको टंग ट्विस्टर हो गया है ना, टंग ट्विस्टर हो ना, शॉ शॉ. शी इज शेलिंग पीस. शी इज शेलिंग पीस. Shaw and shaw. Sometimes she shell peas. S S S. Sometimes she shell peas. Sometimes she shell peas. She helps her mother in shelling peas. तो इस तरह के वर्ड्स को ना टंग ट्विस्टर भी कहते हैं, जिसमें शॉ सॉ सॉ शॉ इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना. वैसे जब आप थोड़ी और बड़ी क्लास में जाओगे तो टंग ट्विस्टर्स भी आप सीखोगे. चलिए, तो ये हमारा हो गया 5th पैराग्राफ. आई होप ये समझ में आ गया आपको कि मम्मी वर्क से आती है 4 o'clock एंड while coming back home she picks her younger sister also from play school, and then she cooks dinner. Pihu helps her mother in cooking dinner, and then she shows us a picture where she is shelling peas. Okay, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ. Let's see the next one. अब next क्या है पैराग्राफ? Let me write that. INN THE, the EVENING, evening. She helps me with my homework. She is helping me with maths here. I enjoy doing maths. चलिए, ओके. Now let me read this for you. INN THE, the EVENING, in the evening. SHE, she
HELPS, helps. Me, WITH, with. MY, my. HOME, home. WORK, work. In the evening, मतलब evening मतलब जब sunset हो जाता है, that is called evening. तो in the evening जब sunset हो रहा होता है, that is evening. Before night, the time before night is called evening. So in the evening she helps me. Me मतलब who is she and who is me? She is mother. She मतलब Pihu's mother helps me. Whom she helps? Pihu. Because here Pihu is telling us about herself. यहाँ पे ये जो कुछ भी बोल रही है वो पीहू बोल रही है, हम तो सिर्फ रीड कर रहे हैं ना. Pihu is telling us that in the evening she helps me. Who helps me? Pihu's mother. Pihu's mother. For Pihu's mother, this she is written. She मतलब Pihu's mother. And Pihu's mother helps Pihu. Me मतलब मुझे. वो मुझे help करती हैं. She helps me. वो मुझे हेल्प करती है ना. पीहू इज टेलिंग अस दैट हर मदर हेल्प्स हर. शी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क. मतलब मेरे होमवर्क करने में वो मेरी हेल्प करती हैं. होमवर्क करने में हेल्प करना मतलब शी डज नॉट डू द होमवर्क. मदर इज नॉट डूइंग होमवर्क. होमवर्क इज डन बाय पीहू ओनली, बट शी हेल्प्स पीहू इन डूइंग हर होमवर्क. शी टेल्स हर इफ शी हैज़ एनी डाउट. उसे कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट्स है, तो वो मम्मी उसमें हेल्प करती है. बट होमवर्क इज डन बाय पीहू ओनली. ओनली हर मदर हेल्प्स हर इन डूइंग द होमवर्क. ओके. सो इन द इवनिंग शी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क. शाम के टाइम, शाम को मम्मी जो है, शी दैट इज मदर हेल्प्स पीहू. मी इज पीहू. हियर मदर, शी इज मदर. मी मतलब पीहू. मदर हेल्प्स पीहू in doing her homework. Okay. Now there is a picture along with this paragraph. In that picture, mother is helping. She is helping. SHE she. is HELPING, helping. me WITH with MATHS, maths. Here she is helping me with maths. Here now there is a picture. In that picture Pihu is there and her mother is there. Her mother is helping her with maths. वो मैथ्स का कुछ कर रही है होमवर्क, और उसमें उसकी मम्मी उसकी हेल्प कर रही है. अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इफ़ शी हैज़ एनी प्रॉब्लम, हर मदर इज़ हेल्पिंग हर इन डूइंग मैथ्स होमवर्क. ओके. सो शी इज़ हेल्पिंग मी विथ मैथ्स हियर, क्योंकि मैथ्स में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना. तो मदर इज़ हेल्पिंग हर इन डूइंग द मैथ्स होमवर्क. ENJOY, enjoy doing maths. Now here Pihu tells us that she enjoys doing maths. Pihu को maths करना बहुत अच्छा लगता है. maths करना मतलब maths में जो questions होते हैं, maths में जो exercise होती है, that she likes doing. She enjoy मतलब जिसको करने में आपको अच्छा लगता है. The things that you like doing, उसके लिए हम वो बोल सकते हैं कि I enjoy. मैं enjoy करती हूँ या करता हूँ. जो चीज़ें करना हमें पसंद होता है, the things that we like doing, for such things we can say that I enjoy doing that. Some people enjoy dancing, some people enjoy doing painting, some people enjoy doing drawing, and some people enjoy doing maths. So here Pihu tells us that she likes doing math. She enjoys doing math. ये है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ 6. ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ. इन द इवनिंग शी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क. शी इज़ हेल्पिंग मी विद मैथ्स हियर. आई एंजॉय डूइंग मैथ्स.
तो इस पैराग्राफ में हमने जाना कि पीहू की मम्मी उसको पढ़ाई में भी हेल्प करती है. पीहूज मदर हेल्प हर इन हर स्टडीज़ टू. आपकी मम्मी भी करती हो. योर मदर मे ऑल्सो बी हेल्पिंग यू डेफिनेटली. घर में जो बच्चे होते हैं मम्मी उनको पढ़ाती है ना. तो योर मदर मस्ट बी हेल्पिंग यू इन डूइंग योर होमवर्क्स. इन व्हेन यू आर अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस, योर मदर इज़ देयर टू हेल्प you out. If you do not understand something, your mother sits along with you. I've seen this. At your home also your mother must be helping or may be helping you in doing your homework. In the same way, Piyu's mother is also helping her in doing her homework. So she really works hard. She goes to office, she cooks, she picks the younger sister. She often drops Piyu at home. She helps Piyu in her studies. So overall, her mother helps is really a hard working woman. उसकी मम्मी जो है वो सच में बहुत ही मेहनत करने वाली लेडी है ना. आपको दिख रहा है ना कितना काम करती है मम्मी. तो ये हमारा हमने ख़त्म कर लिया. नाउ नेक्स्ट जो पैराग्राफ है दैट इज़ वी हैव 3 more paragraphs to do. अभी 3 और पैराग्राफ बचे हुए हैं दैट वी विल डू बट नॉट इन टूडेज़ वीडियो. आज के वीडियो में हम नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में. इतना तक हमने कर लिया है. जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, प्लीज़ गो थ्रू दैट, रीड ऑल दोज पैराग्राफ्स. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हियर आई हैव रेड फॉर यू. मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. आप इससे हेल्प ले सकते हैं पढ़ने में. ओके. And as I have told you, your mother also must be helping you. तो फिर भी कोई डाउट है तो आई एम देयर फॉर यू. बट रीड. ये जितने भी पैराग्राफ्स मैंने अभी तक करवा दिए हैं, आई हैव डन 6 paragraphs, isn't it? 1 2 3 4 5 6 paragraphs I have done for you. So read all the 6 paragraphs and rest 3 paragraphs we will do in the coming videos. आने वाले वीडियोज़ में हम बाकी के पैराग्राफ्स भी कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल गो फॉर द एक्सरसाइज. आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, गो थ्रू दैट. इन केस कोई डाउट है आपको, आई एम देयर फॉर यू. आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं. ठीक है. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कंटिन्यूशन ऑफ द चैप्टर, explanation of the chapter. Okay, thank you.